Welcome back. Now the chapter 10, culture and heritage. So let's start. Concept is culture and heritage. Sub-concepts are Golconda Fort, various structures found in a fort like bastions, okay, like bastions, cannons, etc. Architectural wonders in Golconda Fort, fountains, verandas, gardens, etc. Forts and their importance, museum and their importance. Golconda Fort. First question is, refer to the given picture, select the incorrect option regarding it. तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, कुछ ऐसे हैं जो गलत हैं. 4 ऑप्शंस आर गिवन. Golconda Fort is situated in Hyderabad. Yes, this is correct. The monument is used to tell the time accurately. तो ये incorrect है. Kakatiya dynasty built the Golconda fort to defend the western part of their kingdom. So this is also correct. So option D is correct. A and C. Okay. Now the next question is, which of the following can be seen if we stand at the top of Golconda Fort? तो गोलकोंडा फोर्ट पे जब आप खड़े होते हैं तो आप क्या देख सकते हैं? तो तेलंगाना स्टेट को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो गोलकोंडा फोर्ट है ये कैपिटल सिटी हैदराबाद में है, ठीक है. नाउ वेरियस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन अ फोर्ट लाइक bastions, cannons, etc. Now you must be interesting to know what is bastions. तो bastions एक projections होता है जहाँ पर मतलब एक तरह का ऐसा projection होता है जहाँ पर आप enemies के ऊपर चारों तरफ से fire करने के लिए ready होते हो. Fine. Cannons etc. Now Stem 3 is study the given picture of bastions carefully. तो ये bastions को आपको carefully read करना है. Why were bastions made in the fort wall? क्यों बनाए जाते थे? तो अब आपको अभी समझ आ जाएगा कि हम bastions क्यों बनाते थे. To ensure the security of the fort. Yes, this is correct. Soldiers can view through big holes present in the bastions. Bastions as better vantage point. Yes, this is also correct. To view the entire city. नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्टियंस बनाए जाते थे. तो बेस्टियंस उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए नहीं होते थे, बल्कि इसकी सिक्योरिटी के लिए होते थे. और इसमें जो बड़े बड़े ये होल्स बने होते थे उसके थ्रू जो होते हैं वो सोल्जर्स जो थे वो अगर सिक्योरिटी में या फिर किसी तरह का कोई अटैक होता था तो उन्हें पहले से पता चल जाता था. तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट. Stem 4, which of the statement is correct for cannons placed at the Golconda Fort? Okay, now they are the big guns used at earlier times. Okay, these are the big guns. Cannons क्या होते हैं? Big guns होते हैं. Yes, जो पहले यूज़ किए जाते थे. You can see in the picture cannon is made. They have special names and symbolizes the victory. Yes, this is also correct. These have special names. इन cannon के special names हुआ करते थे. They are made up of iron and bronze. और ये iron और bronze से बने होते थे. Yes, so option D is correct. All the above. Okay. Now let's understand question 5. It is said that a single clap on the entrance of Golconda Fort can be heard up to 1 kilometer. ऐसा माना जाता है कि जो इनके सिंगल एंट्रेंस पर जो है सिंगल क्लैप अगर आप एक ताली भी बजाते हैं तो वो लगभग 1 किलोमीटर तक सुन सकते हैं. फॉर व्हाट पर्पज़? ये क्यों बनाया गया था? वॉज दिस अकॉस्टिक वॉन्डर यूज्ड? किस लिए ये यूज़ किया गया था? तो टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम एनिमल्स? नहीं, दिस इज़ इनकरेक्ट. टू अट्रैक्ट द विजिटर्स? नहीं. टू कम्युनिकेट व्हेन एन आर्मी अटैक्ड? एग्जैक्टली, जिससे वो क्लैपिंग्स के थ्रू या कुछ जेस्चर्स के थ्रू उनको बता सकें. सो ऑप्शन सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन स्टेम 6 इज Golconda Fort has many gates out of which the main gate is Fateh Darwaja. ठीक है. What was the function of the sharp steel spikes made on the gate? ये जो शार्प स्टील स्पाइक्स बनाए गए हैं गेट के ऊपर, इसका क्या पर्पस था? टू इन्फॉर्म द रेसिडेंट्स अबाउट डेंजर, टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एलिफेंट्स टू एंटर. येस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. नाउ द नेक्स्ट, लुक एट द गिवन पिक्चर्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट. यहाँ पे आपको बताना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक फाउंटेन है, क्ले पाइप है और वाटर व्हील है. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी मोर. ठीक है. तो हाउ वॉज वाटर सप्लाइड इन गोलकोंडा फोर्ट?
तो वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से सप्लाई नहीं होते थे, वो क्ले पाइप से सप्लाई किए जाते थे और पर्सियन वाटर व्हील एंड बुलक्स के थ्रू सप्लाई किए जाते थे। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ वेरांडा गोलकोंडा फोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्च बनाए गए हैं ये छोटे बड़े साइज़ में बनाए गए हैं। तो क्यों बनाए गए हैं? टू इन्हांस द ब्यूटी ऑफ फोर्ट? नहीं। टू इंश्योर द मास ऑफ पीपल पास थ्रू देम, मतलब बहुत सारे लोग उसमें ईजिली पास हो जाए? नहीं। टू मेक साउंड ऑडिबल? येस, दिस वॉज द रीज़न कि साउंड को ऑडिबल किया जा सके। व्हाट इज़ द नेम? ये जो गोलकोंडा फोर्ट है इसमें एक बगीचा बनाया गया था, पार्क बनाया गया था, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको नगीना बाग कहते हैं। नेक्स्ट इज़ विनीत और उसकी फैमिली जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हैं दिल्ली में, और वहाँ पर वो देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बने गए हैं, लेबरर्स के हार्ड वर्क उनको नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारा लिटर हुआ है बाउंड्रीज़ के पास, किले के पास। तो आप कैसे इस हिस्टोरिकल प्लेस को कंजर्व करेंगे? ओके, सो द आंसर इज़ वी शुड लिटर एनीवेयर इन द फोर्ट, कि हम कहीं पर भी लिटर कर सकते हैं? नहीं, हम कहीं पर भी नहीं कर सकते। तो पहला तो ये गलत हो गया। वी शुड नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स? येस, हमें स्क्रिबल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो लिटर हियर एंड देयर? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। वाई आर दीज फोर्ट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व? अब हम इन्हें क्यों प्रिजर्व करें? ये रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट हम क्यों प्रिजर्व करें? क्या नीड है इसको प्रिजर्व करने का? बिकॉज फोर्ट्स टेल अस अबाउट द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट, जो रहते थे उनके बारे में बताता है। बिकॉज फोर्ट्स रिफ्लेक्ट द हिस्ट्री एंड ग्लोरी ऑफ अ कंट्री, दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ म्यूजियम्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस। विधि with her class visited to a museum in her city. There she saw broken arms, rusted ornaments and other many artifacts. She was wondered, why do we need them to preserve them in museums? So they symbolize our values, cultural identity and historic continuity. Yes. They symbolizes our respect towards the country. Yes. They educate the public about history, art, culture, etc. Yes. So option D is absolutely correct. Okay. So this chapter is done. Now I'll come with chapter 13. Thank you so much for watching. Bye everyone.